बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्वेश्चन नंबर 8, बुक पेज नंबर 54। इन दिस क्वेश्चन, इन a group of 500 employees, 250 can speak Urdu, 150 can speak English, 50 can speak Punjabi, 40 can speak Urdu and English, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all three languages? हमने ये हमें मालूम करना है कि जो ऐसे एम्प्लॉइज जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकती हो। सो इसी तरह से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं कि उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी को। U for Urdu, U set of the employees who can speak Urdu, E set of the employees who can speak English, and P set of the employees who can speak Punjabi. According to the statements, अगर हम जाएं according to the statements, तो हम रिप्रेजेंटेड करते हैं U for उर्दू और ई को इंग्लिश से और पी को सेट ऑफ द एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक पंजाबी। सो हम जाते हैं नंबर ऑफ द स्टूडेंट एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू is 250 and number of the employees who can speak English, number of the students who can speak English is 150. Number of the employees who can speak Punjabi is 50 and 40 can speak Urdu and English both. So number of the employees who can speak Urdu and English is 40. Number of the employees who can speak both languages, English and Punjabi, is 30, and the number of the employees who can speak Urdu and Punjabi is 10, and number of the employees who can speak the languages of Urdu, English and Punjabi is 500. And number of the students who can speak three languages, ये हमने फाइंड करना है। Number of the students who can Urdu, English and Punjabi, ये फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ये वाली सारा स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाता है। अब इस स्टेटमेंट के या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे टू यूज फार्मूला ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जिसमें फाइंड करते हैं नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज हु कैन स्पीक उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इज इक्वल टू number of the employees who can speak Urdu plus number of the employees who can speak English and number of the employees who can speak Punjabi minus number of the employees who can speak Urdu and English minus number of the employees who can speak English and Punjabi minus number of the employees who can speak Urdu and Punjabi and number of the
employees who can speak Urdu, English and Punjabi. So in this formula we find the employees who can speak Urdu, English and Punjabi, 3 languages. So put the values number of the employees who can speak Urdu, English and Punjabi is 500. Number of the students who can speak Urdu is 250. Plus number of the employees who can speak English is 150. Number of the employees who can speak Punjabi is 50. Number of the employees who can speak Urdu and English is 40. Number of the employees who can speak English and Punjabi is 30. And number of the employees who can speak Urdu and Punjabi is 10. माइनस ये हमने वैल्यूज पुट कर ली जो हमें स्टेटमेंट में दी गई थी, और जो हमने मालूम करना है वो है नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, ये हमने फाइंड करना है। सो इन सबको हमने क्या करना है, प्लस, ये भी प्लस की वैल्यू है, इन तीनों को प्लस करना है। 500 एज इट इज ऐसे आ जाएगा, 250 150 400 और 50 450, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, ये भी माइनस, इन तीनों को प्लस करना है, इनके साथ माइनस में 40 और 30 70 और 10 18, कितने आए 18, प्लस नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। इन दिस क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो 500 एज इट इज आ जाएगा। 450 में से 80 को अगर हम माइनस करते हैं तो ये बचेगा 370 प्लस नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। अब जरा देखते हैं, जरा इक्वल टू के राइट साइड पे 370 ये प्लस हो रहा है, अगर हम इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये किस में चला जाएगी वैल्यू, ये माइनस में चली जाएगी। उसकी रीजन क्या है, जब भी इक्वेशन में किसी भी जगह अगर राइट साइड पे प्लस हो तो लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो लेफ्ट साइड पे आते हुए वो प्लस हो जाएगा। सो ये वैल्यू राइट साइड पे प्लस है, जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। 500 माइनस 370 इज इक्वल टू n एंड U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P। अगर हम 500 में से 370 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 130 रिमेनिंग बच जाता है। एंड नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज हु कैन स्पीक उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। सो हमने क्या मालूम करना था कि ऐसे एम्प्लॉयज बताएं जो उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस जो अच्छे तरीके से जानते हो, बोल सकते हो, तो वो आते हैं 130। सो हमारा आंसर जो कि हमने हमें मालूम करना था वो है 130, ये हमारा आंसर है। थैंक यू।